جناب اسپیکر، آج ایک آئینی پروسیس جو ہے اس نے اپنے اختتامی مرحلے کو پہنچنا ہے۔ الیکشن ہوگا، کوئی کامیاب ہوگا اور کوئی آزاد ہوگا۔ آج قوم کے سامنے دو راستے ہیں اور قوم کو ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ایک راستہ ہے خودی کا راستہ، ایک راستہ ہے خود مختاری کا راستہ، اور دوسرا راستہ ہے کہ غلامی کا راستہ۔ یہ دو فیصلے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب عمران خان صاحب کا، جنہوں نے اس اہم موڑ پر مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ان نے انتخاب کیا۔ میری جماعت کی کور کمیٹی نے عمران خان کے فیصلے کو انڈورس کیا۔ جناب اسپیکر، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں معزز ممبران اسمبلی کا۔ خاموشی اختیار کریں، سب کو موقع ملے گا۔ میرے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے وفاداریاں تبدیل نہیں کی، یہ اپنے اصول موقف پر قائم رہے، یہ جھکے نہیں، یہ بکے نہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ جناب والا، آج میں یہ ریکارڈ پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میری جماعت تحریک انصاف، جو نسبتاً ایک نئی جماعت ہے، بہت سی پرانی جماعتیں موجود ہیں، اس نئی جماعت نے مختلف ارتقاء کی منازل سے گزرتے ہوئے آج ایک ایسا مقام حاصل کر لیا ہے کہ آج اس کا ایک نظریاتی اثاثہ جو ہے وہ لوگوں کے، اور اس کا جو ایک سوچ ہے لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو چکی ہے۔ جناب والا، آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ملک کی ایک سوچ کی عکاسی کرنے والا طبقہ بیٹھا ہے اور دوسری طرف ایک اتحاد بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اتحاد مختلف الخیال جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ جناب والا، ہماری نظر میں تحریک انصاف کی نظر میں یہ اتحاد جو ہے ایک غیر فطری اتحاد ہے۔ یہ غیر فطری اتحاد اس لیے میں کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس ایوان میں بہت سی ایسی معزز جماعتیں بیٹھی ہیں جو آج یکجا دکھائی دیتی ہیں کسی مقصد کے حصول کے لیے، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان میں کوئی نظریاتی ہم آہنگی نہیں ہے۔ کیا پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک فضل الرحمان گروپ، ایک سیاسی جماعت ہے، اور اسی ایوان میں ایک بیٹھی ہوئی جماعت نے اس جماعت کے قائد کو، مولانا مفتی محمود صاحب کو، قومی اسمبلی سے باہر پھینکوایا گیا تھا۔ کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھی ہوئی ایک اہم جماعت خیبر پختونخوا کی عوامی نیشنل پارٹی ایک ایسی جماعت ہے، ان کی اپنی تاریخ ہے؟ کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ یہاں ہی بیٹھی ہوئی ایک جماعت نے ان پر مقدمات قائم کیے گئے، ان کو پابند سلاسل کیا گیا اور حیدرآباد جیل میں بند کیا گیا اور ان پر کیسز چلائے گئے؟ کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے جناب والا کہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے معزز ممبران تشریف فرما ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ اسی جماعت میں اور اسی اتحاد میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو ویلیفائی کیا، ان کی کردار کشی کی،
उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कातिल में कातिल मकतूल यकसा दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपना किरदार अदा किया। जनाबे वाला, यहाँ आज इस ऐवान में मेरे मोहतरम BNP मैंगल के सरबराह तशरीफ फरमा हैं। क्या तारीख इस बात की गवाह नहीं कि इनके जलील उल कदर वालिद सरदार अताउल्लाह मैंगल साहब बड़े खुददार इंसान थे। क्या उन पर क्या बीती गई और उनको किस तरह चक्की में पीसा गया और कई साल उनको ना चाहते हुए एग्जाइल में गुजारना पड़ा। वो कौन से हाथ थे जिन्होंने सरदार अताउल्लाह मैंगल को ये दिन दिखाए? वो भी तारीख का हिस्सा है और आज उनके साहबजादा इस अवान में बैठे हैं और मेरा इशारा समझ गए हैं। जनाबे वाला, मैं यहाँ ये भी अर्ज करता चलूँ कि आज ट्रेजरी बेंचेस पर MQM पाकिस्तान के दोस्त भी तशरीफ फरमा हैं। आज ट्रेजरी बेंचेस में तशरीफ फरमा हैं। क्या ये कौम इस बात की गवाही नहीं देगी कि 3 साल 8 माह मेरे MQM के मोअज़्ज़ज़ मेहमान सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करते रहे? क्या तारीख इस बात की गवाही नहीं देगी कि वो कहते रहे कि कराची के हुकूक को सल्ब किया जाता रहा और कराची के साथ नाइंसाफी होती रही? तो आज किन से मुंसिफी की तवक्को ले बैठे हैं? क्या तारीख इस बात की गवाह नहीं है कि मेरे MQM के दोस्तों ने एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया? सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो लोकल गवर्नमेंट का कानून पास किया उसके खिलाफ सरापा एहतजाज हो गए और उन्होंने पूरी तहरीक चलाई कराची में। आज वो उन्होंने अपनी सियासी सवाबदीद का इस्तेमाल करते हुए अख्तियार आज वो उनके साथ बैठ गए तो तकरीबन 4 साल वो कोसते रहे हैं। अगर गवर्नर सिंध की ख्वाहिश थी, अगर पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री की तलब थी, अगर वजारतों की डेवलपमेंट फंड्स की ख्वाहिश थी तो वो अपने तहादियों के साथ रह के भी हासिल की जा सकती थी। कहा जा रहा है एक मुआहिदा हुआ है, 37 नुकाती मुआहिदा हुआ है। क्या मेरे MQM के भाई नहीं जानते कि माजी में इनके साथ कितने मुआहदे किए गए और कितने मुआहदे तोड़े गए हैं? ये भी तारीख इस बात की गवाह है। जनाबे वाला, मैं अर्ज करता चलूँ, हाँ ये और बात है कि सिंध में शायद सूबाई असेंबली में इनको 6-7 वजारतें मिल सकती हैं जो कम से कम तहरीक इंसाफ देने की पोजीशन में नहीं है। जनाबे वाला, आज हो सकता है कि कुछ लोग समझें उन्होंने बहुत कुछ पा लिया और किसी ने और किसी फर्द ने और किसी जमात ने बहुत कुछ खो लिया। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आज इमरान खान साहब ने एक फैसला किया और उन्होंने इस फैसले को जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच की अक्कासी करता है कि ताकत का तारीख रहेगी, नारा कोई लगाए, तारीख रहेगी। उन्होंने कहा कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। मैं तस्लीम करता हूं। जनाबे वाला, आज पाकिस्तान की आवाम ने 27 मार्च को दिखा दिया कि ताकत किस तरफ है। कल पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज में, हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में करिया लोगों ने इमरान खान की कॉल पर उन्होंने कहा, उन्होंने लब्बैक कहा और उनके साथ चलने का अज़्म का इरादा किया। जनाबे वाला, आज देखने की बात यह है, कमाल है कि आज कोई जीत के भी हारेगा और कोई हार के भी जीत गया। इसे कहते हैं कि वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुकद्दर के सिकंदर होते हैं। जनाबे वाला, आज ये कोई किसी से टकी छुपी बात नहीं और आपने भी जिक्र किया है कि एक साजिश के जरिए एक बहुत बड़ा मंसूबा
جو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے، پاکستانی عوام پر 22 کروڑ عوام پر ایک منصوبہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ کچھ سر جھکا کر بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کچھ سر اٹھا کے جینے کا ارادہ کر کے آئے ہیں۔ جناب والا، عمران خان کہتے ہیں کیا کیا عمران نے، کیا دیا عمران نے؟ میں کہتا ہوں آج تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ عمران نے قوم کو خودداری دی، اعتماد دیا۔ جناب والا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران نے پاکستانی قوم کو سر اٹھا کے جینے کا درس دیا ہے۔ جناب والا، میں یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان نے آج پاکستان کی قوم کو، پاکستان کے بچے کو، ایک ایک گھرانے کو صحت کارڈ کے ذریعے غربت سے اور بیماری سے بچانے کا ایک منصوبہ دیا ہے۔ جناب والا، آج دنیا اس بات کی معترف ہے کہ جب ساری دنیا کووڈ کی لپیٹ میں تھی، اکنامک کنٹریکشن کا شکار ہو رہا تھا، تو پاکستان نے اپنی بہتر حکمت عملی سے قوم کی جانوں کا حفاظت بھی کیا اور معیشت کی حفاظت بھی کی، اور آج جب وہ جا رہے ہیں تو 5% گروتھ ہے پاکستان کی اکانومی کی۔ جناب والا، لوگ کہتے ہیں کیا کیا؟ میں کہتا ہوں عمران خان نے یہ نہیں کہ ان کو انگریزی بولنی نہیں آتی، he's a graduate from Oxford University، انگریزی جانتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اردو میں بات کی جائے۔ انہوں نے قوم کے اردو کی زبان کو فروغ دیا، انہوں نے پاکستانی لباس کو فروغ دیا، پاکستانی قوم کو شناخت دی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ تھا، عمران خان پاکستان کا وہ لیڈر ہے جب وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملتا ہے تو پشاوری چپل پہن کے ملتا ہے۔ عمران خان وہ لیڈر ہے جب پیوٹن سے ملتا ہے ماسکو میں تو شلوار قمیض اوڑھ کے ملتا ہے، اور عمران خان جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ملتا ہے تو اس سے پاکستانیت کی جھلک نظر آتی ہے۔ جناب والا، آج میں بتاتا چلوں، کہتے کیا ہوا، کیا دیا 3.5 سال میں؟ میں بتاتا ہوں جناب والا، آج قوم کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے جب سن لیجئے، جب ہندوستان پاکستان کے خلاف حملہ کرتا ہے، پلوامہ کے بعد حملہ کرتا ہے، تو عمران خان کی جماعت ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیتی ہے اور ابھینندن کو فارغ کر کے بھیجتی ہے۔ جناب والا، کیا دیا عمران خان نے؟ عمران خان نے احساس کے ذریعے ایک ایسا پروگرام دیا کہ کروڑوں لوگ جو غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہے ہیں ان کو جینے کا حق دیا۔ جناب والا، کہتے ہیں کیا دیا؟ عمران خان نے پاکستان کے لوگوں کو ایک آزاد خارجہ پالیسی کا سوچنے کا تصور دیا، غلامی سے آزادی کا تصور دیا۔ کہتے ہیں جناب والا کیا ہوا؟ یہ آج میں کہتا ہوں کہ آج یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حسین کے طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے خاموشی اختیار کریں کہ پیروکاری پر خاموشی اختیار کریں۔ اس نے فیصلہ کیا، دیکھیں اجلاس کو چلنے دیں، اجلاس کو ختم نہ کریں، یہ کام نہیں کریں، چلنے دیں اجلاس کو، اور قائم رہا حسین کے انکار کی طرح۔ جناب والا، آج ایک سیکنڈ، آج یہ ایوان ایک نیا وزیر اعظم منتخب کرنے جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب آج نئے وزیر اعظم بننے کے لیے وہ اپنے آپ کو میدان میں اتار رہے ہیں۔ جناب والا، میں عرض کرتا چلوں، آج کون نہیں جانتا کہ وہ مسلط کیے جا رہے ہیں اور قوم کا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ جوڑ توڑ کر کے ایک عارضی کولیشن قائم کیا گیا ہے جو دیر پا نہ ہوگا۔ لکھ لیجئے میرے الفاظ، تاریخ نوٹ کر لے کہ یہ ایک عارضی الائنس ہے جو بکھر جائے گا۔ جناب والا، جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا یہی تو بارہ نہیں کھاتا نا بھائی۔ جناب والا، آج کون نہیں جانتا کہ
आज 11 अप्रैल है। पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के शहरियों, आज 11 अप्रैल है। आज कौन नहीं जानता कि मुल्क का जो मुंतखब होने वाला वजीर आज़म है, उसने लाहौर में उसकी पेशी थी और फर्ज जुर्म आयद उस पर होनी थी। आज उस पेशी से फरार हासिल किया जा रहा है। दबाव डालकर उन केसेस को दफन किया जाएगा। हो सकता है आप वजारत उज़्मा पर बैठकर वो केसेस दफन कर दें, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर एक चीज़ और साबित हो जाएगी कि खवास के लिए एक और कानून है और अवाम के लिए एक और कानून है। और इसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ तहरीक इंसाफ मार्ज़ वजूद में आई है। जनाब वाला, आज मैं ये भी कहता चलूँ कि क्या कौम इस बात की गवाह नहीं है कि जो हमारे आने वाले वजीर आज़म हैं वो रिकॉर्ड पे हैं कि मैं पेट चाक करके लूटी हुई दौलत वापस लेकर आऊंगा। आज नई मसलतें सामने दिखाई दे रही हैं। जनाबे वाला, कौन नहीं जानता कि कल जरदारी हाउस में जनाब शहबाज शरीफ तशरीफ ले गए। वो तशरीफ ले गए और क्या करने? शुक्रिया अदा करने गए होंगे यकीनन। सवाल ये है, बाज़ गश्त थे कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा बनवाने की उनकी ख्वाहिश है पीपल्स पार्टी की। ये उनका फैसला है, ये बाख्तियार लोग हैं, आज़ाद हैं। लेकिन मैं आज पीपल्स पार्टी के कारकुन को कहता हूँ कि अगर बिलावल ने शहबाज शरीफ की वज़ारत ख़ारजा कबूल की तो ये भुट्टो का नवासा और बेनज़ीर के बेटे को सजती नहीं है कि वो जानते हैं कि तारीख़ किस बात की है। जनाबे वाला, कौन नहीं जानता कि ये शहबाज शरीफ साहब लाहौर जाते हैं, चौधरी साहबान के दरवाजे पे दस्तक देते हैं और कहते हैं हम आए हैं तीमारदारी के लिए। अच्छी बात है, तीमारदारी होनी चाहिए, लेकिन 14 साल बाद तीमारदारी की फिर भी अच्छा किया। फिर पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री पेश करना चाहते हैं और खुद कहते थे आपस में कि इन्होंने बेवफाई की और काफ नून के बारे में और नून क्यू के बारे में जो कहती रही वो आपके सामने है। और फिर जनाब स्पीकर, जमहूरियत का एक नया रूप देखें। ये पाकिस्तान में अनोखी जमहूरियत है कि वालिद वजीर आज़म और बेटा वजीर आला। ये जमहूरियत का एक नया रूप है जो हम देख रहे हैं। जनाबे वाला, आज कौम को देखना यह है कि इन दो बड़ी जमातों को क्या हो गया है। जब भी सियासत आती है, जब भी इंतखाब आता है, पीपल्स पार्टी हो तो जरदारी फैमिली से बाहर किसी का सोच भी नहीं सकते, वजारत उज़्मा के लिए सोच भी नहीं सकते। हाँ, आर्जी तौर पर गिलानी साहब को और राजा साहब को वक्ती तौर पर बनाया गया। मुस्लिम लीग नून की बारी आती है तो शरीफ खानदान से बाहर जाना इनके लिए नामुमकिन हो जाता है। बहरहाल, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मंजूर हुआ तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने तकरीर में एक जुमला कहा और वो काबिल गौर है जुमला। बिलावल फरमाते हैं कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। मैं आज कौम को बताना चाहता हूं, जिस पुराने पाकिस्तान को आप वेलकम करना चाहते हैं उस पर 40 साल हुकूमतें इन दोनों जमातों की रही हैं। और वो पुराना पाकिस्तान क्या है, ये कौम को देखना चाहिए कि वो पुराना पाकिस्तान क्या है। वो पुराना पाकिस्तान वो है जिसका बच्चा बच्चा मकरूज है। वो पुराना पाकिस्तान वो है जो हमारे रेवेन्यू जनरेशन का बेशतर हिस्सा डेट सर्विसिंग पे खर्च हो जाता है। जनाबे वाला, कौन नहीं जानता जिस पुराने पाकिस्तान की नवीद वो सुना रहे हैं वो हिस्टोरिक ट्रेड डेफिसिट का शिकार है। और जब कोई कौम हिस्टोरिक ट्रेड डेफिसिट का शिकार होती है और उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में इम्बैलेंस होता है तो फिर उनको IMF के
दरवाजे पे दस्तक देनी पड़ती है और IMF की कड़ी शराइत कौम पर मुसल्लत की जाती हैं और ये उस पुराने पाकिस्तान की हमें नवीद सुनाने हैं। कौन नहीं जानता जिस पुराने पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, ग्रे फैक्टर की ग्रे लिस्ट में कौन छोड़ गया? पुराने पाकिस्तान में कौन छोड़ गया? ये भी आप जानते हैं। आप भी जानते हैं कि GDP की ग्रोथ जो थी वो स्टैग्नेंट थी और नतीजतन मुल्क में बेरोजगारी बढ़ती चली गई, मुल्क में गुर्बत बढ़ती चली गई और कौम उस चक्की में पिसती चली गई। आज कौन नहीं जानता कि मुल्क के हर इदारे में करप्शन स्याह गई है। हर मोड़ पर पाकिस्तान के आम शहरी को करप्शन का सामना करना पड़ता है। पटवार में जाए, थाने में जाए, तहसील में जाए, कहीं जाए, उसको करप्शन का सामना करना पड़ता है। जनाबे वाला, कौन नहीं जानता कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कैफियत ये है और पाकिस्तान की तारीख 70 के इंतखाबात के बाद जितने इंतखाबात हुए हैं उन पर सवालिया निशान लगाया गया और इलेक्शन प्रोसेस को कभी हमने कभी आपने कहा कि ये मैंडेट चुराया गया, कभी कहा गया ये मैंडेट सही नहीं है, कभी कहा गया सिलेक्टेड है, कभी कहा गया इलेक्टेड है। आज 40 साल आप हुकूमतों में रहे, इमरान को तो 4 साल पूरे नहीं करने दिए गए। 40 साल अब हुकूमतों में रहे, क्या 40 साल में आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो बात करने आए हैं, तो 40 साल क्या आपके पास इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी नहीं थे? आप ना कर सके और न कर सके तो आज हमारी वो कैफियत है। जनाबे वाला, आज कैफियत ये है कि पाकिस्तान के जितने पब्लिक सर्विस के इदारे हैं वो तकरीबन डिसफंक्शनल हो चुके हैं एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विस बीइंग प्रोवाइड टू द, चाहे सेहत हो, पीने का पानी हो, निकासे आब हो। आज कराची से पूछ के देख लें, मुख्तलिफ बड़े फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान से पूछ के देख लें, तो हालत आपके सामने है। जनाबे वाला, आज मैं ये कहता चलूं कि पाकिस्तान की आवाम ने इस कोलिशन को, इस इंपोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद करने का फैसला कर दिया है जनाबे वाला, और उसका अमली मुजाहरा कल पाकिस्तान में नहीं बैरून मुल्क भी उसका अमली मुजाहरा देखा गया। जनाबे वाला, आज मैं अर्ज कर रहा हूं, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान चूज बिटवीन ए पाकिस्तान और एक गुलाम पाकिस्तान। ये है फैसला करने का। आज हमें देखना है कि हमें वही पुराना पाकिस्तान जिसकी बीमारियों का मैंने जिक्र किया है, आपको वो पुराना पाकिस्तान चाहिए या वो नया पाकिस्तान जिसका आज़म हम कर रहे हैं वो आपको चाहिए? उसके लिए अगर नए पाकिस्तान का आप ख्वाब देखना चाहते हैं तो दो इमरान खान को देखो, नया पाकिस्तान बनता है कि नहीं बनता। जनाबे वाला, आज मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले सिर्फ ये कहना चाहूंगा, बहुत सी बातें की गई, सोशल मीडिया की बातें की जा रही है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी की बात करना चाह रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि पाकिस्तान को एक मजबूत फौज दरकार है। हमारा खित्ते के ऐसे हालात हैं, हमारा एक ऐसा चालाक दुश्मन हमारी मशरक की तरफ पर बैठा है, हमें एक मजबूत प्रोफेशनल फौज पाकिस्तान की ज़रूरत है। हम कदर करते हैं, हम उनकी कुर्बानियों को सलाम करते हैं, उनके शहदा को सलाम करते हैं जिन्होंने दहशतगर्दी की जंग में अपनी जानों का नजराना पेश किया। मेरे और आपके बच्चों को महफूज करने के लिए हम उनको सलाम पेश करते हैं। आज पाकिस्तान की ज़रूरत है एक आज़ाद अदलिया, हर शहरी की ज़रूरत है। जनाबे वाला, कमाल है, कुछ केसेस होते हैं जो सालों साल लटके रहते हैं और कुछ केसेस होते हैं जो घंटों में नतीजा निकल आता है। आज दरकार है हमें एक मजबूत आज़ाद अदलिया, पाकिस्तान के शहरियों की ज़रूरत है। जनाबे वाला, मैं एक और अर्ज करता चलूँ, हमारे बहुत से हलीफ थे, इनकम पाकिस्तान हमारे भाई, बलोचिस्तान अवामी पार्टी हमारे भाई, और दूसरे कौन थे?
मैं आज ऑन द फ्लोर ये GDA के साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं आज गौहर खान साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सारा बानो बीबी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। साबिजा मिर्जा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप डगमगाए नहीं। जुबैदा जलाल साहिबा BAP की मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब वाला PMLQ के मोहम्मद सलाई साहब, सालेक साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब वाला आज मैं इससे पहले शेख रशीद साहब तो हमारे हरीफ हैं हमारे। अब मैं अर्ज करता चलूँ कि जनाब इससे पहले इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदा रहेगा, पाइंदा रहेगा। हम इस मुल्क के सब मिल के हिफाजत करेंगे। लेकिन आज इन हालात को सामने रखते हुए ये जो बैरूनी मदाखलत हो रही है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पाकिस्तान में हुई है, जिसका एतराफ़ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कर रही है, उसको सामने रखते हुए मैं समझता हूँ आज इस प्रोसेस का हिस्सा बनना, आज इस प्रोसेस में शामिल होना एक नाजायज़ हुकूमत को लेजिटिमेट करने के मुतरादिफ होगा और हम इस गुनाह में शरीक नहीं होना चाहते। जनाब वाला, चुनाचे मैं तहरीक इंसाफ का वजारत उज़्मा का कैंडिडेट था। मैं आज उस सिलेक्शन की बायकॉट का ऐलान कर रहा हूं मैं। और मैं आज पार्टी के इज्तिमाई फैसले को सामने रखते हुए आज हमने तहरीक इंसाफ इमरान खान की मशावरत में तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने फैसला किया है, इस नाजायज़ हरकत में हम शामिल नहीं होंगे। हम आज़ाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं। हम सब मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं और इंशाअल्लाह खामोशी, नारेबाजी मत करें। जो है स्पॉन्सर्ड अरेंजमेंट मुस्तरद करते हैं। शुक्रिया जनाब। जी, आइटम नंबर 2, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इस कार्रवाई का हिस्सा बनूं। मैं इस चेयर से उठूंगा और अयाज सादिक जो है वो यहाँ पे आके इजलास चलाएंगे। नए कायदे ऐवान का कौमी असम्बली का इजलास, जिसमें आज बाइकॉट का फैसला किया गया और ये कहा गया शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कि हम इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम सब के सब, हमारे साथ तमाम इत्तेहादी जमातें, हम सब असम्बली से मुस्ताफी होने का ऐलान करते हैं। उसी के साथ साथ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी भी अपनी सीट से खड़े हो गए। उन्होंने कहा आइटम नंबर 2 ये है कि मैं भी इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनूंगा और अब चेयर करेंगे अयाज सादिक। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कौमी असम्बली मुस्ताफी हो गए हैं। बाइकॉट का ऐलान किया गया है शाह महमूद कुरैशी की जानिब से और वो ऐवान से इस वक्त बाहर जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली। और उन्होंने एक तकरीर की और उसके बाद तमाम के तमाम मेंबरान जो हैं वो बाहर चले गए हैं। इस वक्त मियां शहबाज शरीफ अपनी नशिस्त पर मौजूद हैं और इस वक्त सरदार अयाज सादिक जो हैं पैनल ऑफ चेयरमैन में, वो इस वक्त असम्बली की सदारत करेंगे क्योंकि स्पीकर की नशिस्त पर वो बराजमान है। कासिम सूरी जो डेप्यूटी स्पीकर हैं वो भी अपनी नशिस्त से उठकर जा चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इज्तिमाई इस्तीफ़ों का फैसला सामने आ गया है। वज़ारत उज़्मा के इंतखाब के हवाले से बाइकॉट का ऐलान कर दिया गया है और अब तमाम के तमाम अरकान असम्बली हॉल से बाहर जा रहे हैं नारे लगाते हुए कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। और उसके साथ ही उन्होंने अपनी तकरीर ख़त्म की और तमाम अरकान असम्बली बाहर जाना शुरू हो गए हैं। कौमी असम्बली में आज वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन और उसमें मियां शहबाज शरीफ